A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. And today we all are going to continue this chapter number 1 of your history book. And the name of your chapter is How, When, and Where. So class, in our last class, we discussed about the periodization, how James Mill periodized British periodized India. He periodized India into Hindu, Muslim, and British, and he published his work uh, in the book called A History of British India. Okay. And after that, it is important to divide history into different periods because it reflects the ideas about the past. Okay? And it also reflect the significance of the changes happens from one period to the another period. And after that, what was the James Mill's viewpoints, why he divided India into Hindu, Muslim, and British? Like according to him, before Britishers, जो इंडिया था, इंडिया was India was ruled by Hindus and Muslim rulers, and according to him, he thought India was less civilized. India was at a lower level of civilization. So he said, if we really want India to develop under British rule, there will be some introduction of European manners, arts, institutions, laws in India, etc., which will bring enlightenment, happiness, and development of the Indian people. Okay. So now what happened? In any case, can we refer to some question arises? In any case, we refer to any period of history as Hindu or Muslim. Like, what do you think about it? Like, हमें ऐसे करना चाहिए क्या कि हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करना चाहिए? ठीक है. So did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? हो सकता है ना कि अब obviously according to Britishers this was the perfect division of the history of India, right? So at that time, like, they divided it into, okay, first of all Hindus were there, and they ruled the country, and after that Muslim domination was there, and Muslim ruled the country, and after that British came to India and they started ruling the country. So obviously, is it like we should question arises, we should refer to any period of history as Hindu or Muslim? Like we हो सकता है ना बहुत सारे ऐसे फेथ्स होते होंगे जो इस पीरियड में, अब जैसे हिंदूज हैं, मुस्लिम, जब मुगल्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे, तो हो सकता है उस टाइम पे जो और बहुत सारे जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, ठीक है, उससे पहले आपके महाराणा प्रताप भी थे, ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट इंडियन रूलर्स थे, उनके फेथ्स भी तो वेरी करते थे, उनके फेथ्स भी तो थे, तो उनके फेथ्स में भी तो वैरायटी थी. बट we divided, like, not we, but historians divided this period into Hindu or Muslim because there was the domination of Hindu rulers or Muslim rulers. That's why they divided the uh, history of India into Hindu period and the Muslim periods. Okay. So now, why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? Because to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. वहां यहाँ पे मोस्टली क्या शो किया जाता है कि जो रूलर्स हैं उनकी लाइफ्स को ज्यादा प्रिफराइज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाता है. हिस्ट्री बुक्स में कॉमन पीपल के बारे में बहुत कम बातें होती है या बहुत कम लिखा होता है. क्यों? क्योंकि ये एक तो ये बात सजेस्ट करता है कि जो रियली मैटर करता था वो किसकी लाइफ मैटर करती थी, वो रूलर्स की लाइफ मैटर करती थी. इवन द प्रैक्टिसेस दे प्रोफेस, that practices matters a lot. Okay. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. Even rulers from the Hindu community, okay, in India, rulers from the Hindu community also, they even not share they even did not share the same faith. So yes,
yes, like okay, Hindus, Muslim is characterization or periodization of history into Hindu Muslim is fine somehow, because various practices, various faiths various faiths were there, but it all depends upon the like domination. कि ज़्यादा dominated कौन था, and accordingly they created it, right? Okay, so now British classification क्या है history का? Ancient, medieval and modern. ठीक है, ancient period, medieval period and modern period. Even in our schools, even in our like schools, we studied like this only. In class 6 we studied ancient history, in class 7th we studied medieval history, and now we are going to study in class 8 we are going to study about the modern history. ओके, अब ये क्लासिफिकेशन तो हो गया, ब्रिटिशर्स ने क्लासिफाई भी कर दिया, बट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी इन इस क्लासिफिकेशन में भी. ऑब्वियसली ये जो क्लासिफिकेशन था कहाँ से बोरो किया गया था? It borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth, science, democracy, liberty, etc. ठीक है, liberty, reason, equality, etc. Britishers borrowed this from the like this classification from the West, like जितने भी Western countries हैं, अमेरिका हो गई, ठीक है, यूरोप की कुछ countries हो गई, वहां से उन्होंने borrow किया. And modern period, according to Western countries and according to their classification, modern period was associated with the growth, development, but in India that development was not there. साइंस में डेवलपमेंट हो रही है, डेमोक्रेसी, उस टाइम पे तो डेमोक्रेसी थी भी नहीं इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे. लिबर्टी, इक्वालिटी, रीजन, इन सब सारी चीजों को एसोसिएट करता है मॉडर्न पीरियड, बट एट दैट टाइम ये सारी चीजें थी नहीं. तो देन हाउ दे क्लासिफाइड दिस पीरियड एज मॉडर्न पीरियड? ओके, हाउ दे called their period as modern period? Why they called this? And now second problem which arise like the medieval. It was the term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Obviously, अब we can't say कि ये medieval period normally कौन सा period होता है? Medieval period basically उस period को describe करता है जहाँ पे science, democracy, liberty, etc. ये सारी चीजें present नहीं होती society में. बट यहाँ पे जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी. ओके, सो दो अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव दीज थिंग्स, therefore many historians refer this period as colonial. Now there is a new term for you. ठीक है, now in your life like you all are going to get so many like terms like colonial time. तो बहुत colonial term आप बहुत बार सुनोगे, तो please understand this term very carefully, very clearly. तो clear रखना इस concept को. So what is colonial? Okay, so and there was no development at that time. That's why many historians called this period as colonial. Okay, now first of all, what is this colonial? Question arises, what is colonial? Colonial, when the subjugation of one country by another country leads to these kinds of political, economic and social and cultural changes, we refer to the process as colonization. Now in this class, in this book basically you all are going to read about the Britishers, how they came to India, how they conquered our country, and how they established their rule in our country. Okay, we will read about it in further chapters. We will read about it, how they conquer it. Britishers came to, how they came to India, how they conquer our country, how they established their rule in India. Okay, how they subjugating. This is a term, new term for you. Okay, underline this term in your book and write the meaning of this term. And please try to break this big spellings and try to learn it.
not learn it, try to break the spellings, go with the phonetics and अपनी pronunciation improve करना उससे, ठीक है. तो how we pronounce this term subjugation. Okay, so what is the meaning of subjugation? It means like the action of bringing someone or something अंडर डोमिनेशन, ठीक है. एक ऐसा एक्शन जिससे आप किसी को अपने अंडर लेकर आते हो, किसी को जब डोमिनेट करते हो, उसके लिए जो भी एक्शंस किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जुगेशन. ओके, द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर डोमिनेशन. So when the subjugation of one country by another leads to different types of political, economic and cultural changes, we call that we refer to the process as colonization. जब एक कंट्री को दूसरी जब एक कंट्री को क्या है उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस एक कंट्री में डेवलप दूसरी कंट्री के थ्रू चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है. अब उनके जितने भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज है, सोशल आइडियोलॉजीज हैं, वो जब किसी दूसरी कंट्री पे लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, और वहां पे चेंजेस लाए जाते हैं उनके कल्चर में, उनके सोसाइटी में, तो उसको हम कॉलोनियल बोलते हैं. नाउ यू ऑल लाइक विल बी वर अमेज्ड कि मैम what are the political, economic and social changes. So when Britishers came to our country, they started collecting revenues, ठीक है. They started collecting revenues. Why they started collecting revenues? To meet their expenses. जितने भी उनके expense होते थे उनको meet करने के लिए, fulfill करने के लिए, they started collecting taxes from the common people. And after that, whatever they want, they bought the goods they wanted at the low price. कम बहुत ही कम प्राइस में वो खरीदते थे. the crops they need to actually Britishers वहां पे जो क्रॉप्स थी, इंडिया इज अ वेरी फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, तो बहुत सारी चीजें इंडिया जो है एक्सपोर्ट करती है. तो दे स्टार्टेड बाइंग गुड्स at very cheap rate and this what they were doing, they were exporting, ठीक है, they were exporting products, export कर रहे थे दूसरी कंट्री में. तो they started this thing of collecting revenue और export करना चाहा और अपना influence यहाँ पे establish करना चाहा. जैसे कि जेम्स मिल ने भी कहा कि if we really want to develop India, if we really want to civilize India, we should Indians should adopt the European manners, ठीक है, उनका आर्ट, उनका तो अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस वो यहाँ पे लेकर आ रहे थे ना. पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अपनी आइडियोलॉजीज लेकर आ रहे थे कि आपको डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, आप लॉज होने चाहिए एंड आप लोग सब हमारे अकॉर्डिंग चलोगे. तो वो इन्फ्लुएंस लेना चाह रहे थे और एक ऐसे एक्शंस कर रहे थे जिससे कि उनका जो रूल है, उनकी जो पावर है वो ज्यादा पावर हो जाए. एंड वहां पे वो जब चेंजेस लेकर आते हैं, ठीक है, अपनी ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे वो चेंजेस क्रिएट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन या फिर कॉलोनियल पीरियड. इन इंडिया whenever we say कि कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, तो वी रेफर टू द ब्रिटिश पीरियड. जो भी ब्रिटिश का पीरियड था ना स्पेशली आपका 1835 से लेके जो पीरियड था 1835 टू 1947, हम उस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं. वैसे तो इंडिया में 16 ऑफ 16 और अर्ली 17 सेंचुरी में जो है ब्रिटिशर्स यहाँ आके रहना स्टार्ट कर चुके थे. दे स्टार्टेड लाइक बाय दे केम टू इंडिया लाइक विद द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. ईस्ट इंडिया कंपनी वो लेकर आए. उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है रूल स्टैब्लिश किया था. ठीक है, we will talk about it, we will study about it later on in this book. Okay, so I hope now it is clear to you what is colonial. क्या होता है colonial? Normally जो आपका ब्रिटिश पीरियड है एंड उनका जो इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो इंडिया में वो लेकर आए थे, उसी को हम कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं. ठीक है, एंड इन इंडिया वी कॉल कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिशर्स का जो पीरियड था उसी को हम कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं. वी कॉल ब्रिटिशर्स पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड. ओके,
So now the question arises, this is the next topic, okay? Question arises, how do we know? Like, what sources do historians use in writing about the, like, about the last 50 years of Indian history? How to get to know about those things जो आज से 250 साल पहले, 200 साल पहले जो चीजें हुई हैं, कैसे पता चलेगी हमें? अब आपको मैं बोलूं आज से 10 साल पहले क्या हुआ है, आपको पता चल सकता है? यस, वी हैव सोर्सेस, लाइक हम इंटरनेट में, इंटरनेट सर्फिंग से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से हमें पता चल जाएगा, बुक से पता चल जाएगा। सो जस्ट लाइक दैट हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या करते हैं, वो किस चीज का यूज करते हैं? राइटिंग्स का यूज करते हैं। व्हाट वर देयर सोर्सेस? सोर्सेज हम यहाँ पे टर्म बोलेंगे, क्या सोर्सेज थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एंड द सेकंड वन इज सर्वेज। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्रिटिशर्स जब आए तो दे स्टार्टेड मेकिंग देयर रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। व्हाट दे डू, they started writing them ki we did this activity, we did this, we like establish railways, and we promote this, etc, etc. Whatever they did, what they did, they they make notes, they made notes, okay, they made memos, they made reports. So this is official records, ठीक है? These are the two main sources, official records and surveys, through which historians get to know about the Indian history, last 250 years of Indian history. They get to know about it from the official records and the surveys और official records से आज से 250 साल पुरानी जो history है उन्हें पता चलती है. So now under this, sources like official records, or you can say administration produces records. So as you all know, like one of the most important source at the time of Britishers period is the official records of the British administration. Administration का मतलब क्या होता है? Management, how they manage things, how they do things, etc. ठीक है, ये मैनेजमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का. What were their laws, what were their policies, how they work in the offices, etc. So Britishers were like they believed that the act of writing was important. They थॉट कि जो अगर कुछ भी कर रहे हैं हम, उसके लिए राइटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम जो भी कर रहे हैं उसको क्लियरली लिखना चाहिए हमें, ठीक है? तो और इससे क्या होगा? एवरी इंस्ट्रक्शन, क्या क्या लिखते थे? एवरी इंस्ट्रक्शन. जो वॉरेन हास्टिंग, आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल से लेके लास्ट वॉइस रॉय माउंट बेटन तक, लॉर्ड माउंट बेटन तक, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी गवर्नमेंट के थ्रू या फिर पॉलिटिशियंस के थ्रू, व्हाट दे डिड, they wrote every instructions, every plan, every policy decisions, how we like हमें कैसे इंडिया को क्या करना है, इंडिया को कैप्चर करना है, या फिर क्या क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या अग्रीमेंट होना चाहिए, और लाइक क्या अच्छे काम अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने किया, कैसे इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने, हर चीज को क्या है, दे बिलीव कि वी शुड राइट इट. ठीक है, जितनी भी डिटेल्स हैं हम सब, हमें हर एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक प्लान को, हर एक पॉलिसी को, अग्रीमेंट को, इन्वेस्टिगेशन को क्लियरली लिखना चाहिए. एंड आफ्टर दैट we should study that thing, and after that we should debate it. स्टडी करना चाहिए कि क्या कमी रह गई है हम, और डिबेट करना चाहिए कि अगर उसमें सक्सेस नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, ऐसे क्या रीजंस है जिससे हमें सक्सेस मिल सकती है, क्या हमारे वीक पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है, क्या हमारी स्ट्रेंथ रह चुकी है, क्या पॉलिसीज हमारी वर्क ऑन की है. तो दे बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ राइटिंग. ठीक है, सो इन एवरी like in every offices under Britishers के अंडर जितने भी ऑफिसेस थे ना, चाहे वो विलेज तहसीलदार हो, ठीक है, कितने उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया. ठीक है, दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स. जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर था कि हमें हर चीज जो है लिखनी चाहिए, तो इससे एक कल्चर स्टार्ट हो चुका था.
मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स का, कि हर चीज का मेमो बनाओ, हर चीज को नोट करो, रिपोर्ट करो। तो ये एक आप बोल सकते हो कल्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका था। एंड द ब्रिटिशर्स फेल्ट important documents and letters needed to be carefully preserved, and they really thought कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा गांधी जी ने काफी लेटर्स भेजे थे, या फिर गांधी जी को भी काफी लेटर्स मिले थे, या जितने भी आपके ये इम्पोर्टेंट पॉलिसीज थे उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, दे थॉट, ब्रिटिशर्स फेल्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर एक डॉक्यूमेंट को क्या है प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मतलब प्रिजर्व करके रखना चाहिए का मतलब क्या होता है, बना के रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल स्कूल में आप देखते हो रजिस्टर्स, रजिस्टर्स केयरफुली मेंटेन कर किए जाते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, और भी लॉग बुक्स होती है, डायरीज होती है, बहुत सारी चीजें ऐसे प्रिजर्व करके रखते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये हम कहाँ से इन्फ्लुएंस होके हम कर रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स की देन है हमारी, जो हम ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, सो इनका जो ये मानना था कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए डॉक्यूमेंट को, फॉर दैट दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे ना, चाहे वो विलेज तहसीलदार का ऑफिस क्यों ना हो, कलेक्टर का ऑफिस क्या क्यों ना हो, कमिश्नर का ऑफिस, या फिर कोई सेक्रेटरी या लॉ कोर्ट्स, whatever the government institution was there, हर एक जगह उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर दिया। और वो एस्टैब्लिशमेंट जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, उनकी खुद का एक रिकॉर्ड रूम होता था जहाँ पे वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, अब जैसे आपने बहुत मूवीज में देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में क्या होता है, अगर आज से 25 साल पुराना भी रिकॉर्ड मांग लिया जाता है तो वो मेंटेन रहता है, कहीं ना कहीं रखा हुआ होता है। तो वो क्या है, रिकॉर्ड है ना, कि आज से 25 साल पहले क्या क्राइम, किस कौन सा क्राइम हुआ था, और एक वो पर्टिकुलर पर्सन इस केस में इन्वॉल्व था, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाती है, राइट। तो प्रिजर्वेशन रखना, रिकॉर्ड रूम्स रखना, ये सारी चीजें कहाँ से आई है, वहां पे ब्रिटिशर्स को फेल्ट हुआ कि हमें रखना चाहिए, और दे स्टार्टेड मेकिंग इट, राइट। So now, specialized institutions like archives and museums were also established. अब museums आपने कभी तो म्यूजियम को म्यूजियम देखा होगा, ठीक है। whenever you visit that, आप देखते हो बहुत पुरानी पुरानी चीजें आपको देखने को मिलती है, आपको you like you get amazed to know about the things। इवन अगर आप जूनागढ़ भी गए हो, वहां पे भी एक म्यूजियम है, और हम देखते हैं वहां पे कितनी पुरानी पुरानी चीजें थी, राजा महाराजा कैसे कपड़े पहनते थे, क्या उनके जो वेपन्स होते थे वो कैसे होते थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया था, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। दे स्टार्टेड मेकिंग, लाइक दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक आर्चीव्स, म्यूजियम्स, ओके। एंड व्हाई दे डिड दैट, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। आर्चीव्स क्या होता है, जस्ट लाइक म्यूजियम, आर्चीव भी क्या होता है, जहाँ पे जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बीकानेर, ठीक है, बीकानेर में आज के पास, आज से मतलब जितना भी उसका पास्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रहे हैं जो हमारे पर्टिकुलर बीकानेर के बारे में बताते हैं, ठीक है, उस प्लेस को हम आर्चीव बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली उन्होंने हर एक प्रोविंस में क्या किया, आर्चीव को स्टैब्लिश किया। दे ट्राई टू establish म्यूजियम्स ऑल्सो, ठीक है, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स के बारे में, वहाँ के उनके पहनावे के बारे में, वेपन्स के बारे में, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। सो वी कैन स्टिल रीड लेटर्स एंड मेमोज that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century। like जो 19th century में letters and memos, ठीक है, जो बने थे, जो सेंड किए गए थे, we can still read those letters and memos of that time। and if you visit any archive or museum, you get to know कि letters कैसे लिखे हुए थे और memos कैसे थे। you can find those letters and memos written by Mahatma Gandhi or Lord Mountbatten or anybody,
ठीक है, एनीबडी फ्रॉम द पास्ट, जो इम्पोर्टेंट आपका लीडर या इम्पोर्टेंट आपके पोजीशन में जो थे उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। इवन आपके फैमिली में भी होता है कि हमारे जो ग्रेट मतलब ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनके कुछ नोट्स या फिर उनके कुछ बोलते हैं ना लेजर्स पड़े होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीजें हुई थी। So, early 19th century documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. Now, this is a new term for you, calligraphist. ठीक है, 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में क्या किया जाता था? उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन्स तो नहीं है। आज के टाइम पे इफ वी वांट बुक्स, वी गेट बुक्स like there is a printing option. Okay, if we want to copy something, we like what we do, we photostat it, we photocopied it. ठीक है, ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा हमारा इससे सेव हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या होते थे, कैलीग्राफिस्ट होते थे। वो क्या करते थे कैलीग्राफिस्ट? कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लाइक जिनकी राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है और बहुत अच्छे से वो लिखते हैं। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं रिटन में, ब्यूटीफुल हैंड रिटन, beautiful writing, those who specialize in the art of beautiful writing is known as calligraphist। ठीक है, तो कैलीग्राफी टर्म सुना होगा आपने कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को के लिए बोला जाता है कैलीग्राफी। तो डॉक्यूमेंट्स को अर्ली 19th सेंचुरी में क्या किया जाता था? कॉपी किया जाता था ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स में। बट मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में बहुत सारे प्रिंटिंग मशीन्स आ गई थी। मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या किया जाता था? प्रिंट किया जाता था, और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे वहां पे पहुंचाया जाता है। अब जैसे इन टुडेज in today's era, what is like for example CBSE, if CBSE wants to give any kind of information in today's era, what they use digital platform, जिससे हमें पता चल जाए कि क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, या व्हाट सीबीएसई वांट्स फ्रॉम अस, राइट। बट आज से वही जब प्रिंटिंग्स नहीं थी, ठीक है, उससे पहले अगर किसी को सेंड करना होता था तो वो व्हाट दे डू, जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था या फिर इंटरनेट प्लेटफॉर्म नहीं था इतना, तो व्हाट दे डू, वो कॉपीज सेंड करते थे कि प्रिंटिंग कॉपीज सेंड करती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी इन्वेंशन होती गई तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव भी होती गई। तो उस टाइम पे मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, उन्होंने प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी और प्रिंटिंग को उन्होंने मतलब मल्टीपल कॉपीज जो है लेटर्स की, मेमोज की, वो निकालने लग गए। नाउ जस्ट लुक एट दिस म्यूजियम, और नहीं, आर्चिव। ठीक है, दिल्ली में स्टैब्लिश है, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया 1920 में स्टैब्लिश हुआ था। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceregal Palace। Viceregal Palace जहाँ पे आपके वाइसरॉय और जो गवर्नर जनरल्स जहाँ पे रहते थे, वहां पे ये लोकेटेड था। बोथ नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्चीव्स बोथ। ठीक है, वाइसरेगल पैलेस। This location reflects the importance of these institution had in British imagination, कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये इंस्टीट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्या इम्पोर्टेंस थी उनके लिए, ये चीज जो है शो करती है। ठीक है, वाइसरेगल पैलेस याद रखना। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इफ आई आस्क्ड यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पिक्चर्स, यू शुड नो कि क्या क्वेश्चन है, व्हाट दिस पिक्चर डिपिक्ट, और ये पिक्चर किसकी है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, नियर वाइसरेगल पैलेस एक्सेट्रा। ओके, so class, this is all about today. Thank you so much for joining the class. Go through the topic, and if you face any problem, do let me know.